Moving on, Ajmer Dargah Chief Syed Zainul Abedin has stirred the hornet's nest by suggesting that political parties should try to find solutions to disputes such as in Mathura and Kashi outside of courts. Any dispute that is resolved by mutual consent will win hearts and trust of communities, he has gone on to say. The Ajmer Dargah chief was addressing a conference titled Paigam-e Mohammed Hum Sab Ka Bharat, organized by Rajasthan unit of All India Sufi Sajja Darshan Council, in which heads of almost all dargahs of Rajasthan were present. But his suggestion has met with opposition by both Muslim clerics and also Hindu petitioners. So what is the divide coming to fore amongst the Muslim cleric voices? Let me first break that down. So while the Ajmer Dargah chief says that we can resolve the dispute outside court, there should be some attempt made on that. The Imam Association chief Sajid Rashidi has said that we've seen what happened during Babri and therefore there is no point getting into this, or there is no trust. That's the indication. The Ajmer Dargah chief says that out of court resolution will be a marker for peace, that we should attempt this because it will be more peaceful and it will foster more peace. The Imam Association chief believes that the Hindu side just wants to take away these sites of Kashi and Mathura and therefore they are not willing to actually settle outside court. It's not as if the Hindu petitioners are very keen on an out-of-court settlement either. One of the main lawyers fighting these cases and petitioner Vishnu Jain has outrightly rejected the idea too. He says that no compromise is possible. Any kind of compromise is barred under law as well, and there are question marks, of course, of how long-standing it can be, and that they are not ready to give away an inch of land. Now, the reason why many may not be enthused by this suggestion of out-of-court settlement, even if noble, is because it is bound to fail. It has failed in the past in the case of Ayodhya and will not be long-lasting. It will always come under question or will be open to litigation later. Now, many such efforts failed in Ayodhya too. These are some of the examples of the negotiations that were attempted. Even in 1990, for example, PM Chandrasekhar had attempted a resolution, but that resolution had failed. Representatives of two organizations had met. They had presented evidence to union government as well, but did not come to much. In 2003, in June, July, efforts were made by Kanchi Shankaracharya that also failed. Vajpayee government had openly backed efforts for Kanchi Shankaracharya to make an attempt as far as this peace is concerned. The AIMPLB rejected his proposals, questioning the government's sincerity, but even the VHP was not very enthused with that idea at that time. December 2003, another track 2 attempt by the BJP failed again. Ayodhya Jama Masjid Trust, an MHA-backed body, suggested a formula. They suggested the government would allocate 400 crore rupees to build a mosque on a different site. Clearly, those formulas were not accepted at that time. Those were the formulas being debated. Till even 2019, the Supreme Court offered an ordered mediation and then the bench sent the land dispute to a 3-member mediation panel. The efforts failed yet again just before there were day-to-day hearings that started and finally a judgment was given. So, the big question, will a mutual agreement and out-of-court settlement be possible at all? We'll take that forward with our guests in just a bit. कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। देश से हमेशा के लिए धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए, उसके लिए बेहतर ये होगा कि मथुरा काशी जैसे जो मसले हैं, इसके लिए हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए सेटल कर सकें। मेरे भाई, अगर आपको बाबरी मस्जिद कज़िये का पता होता तो शायद इस तरह की बातें ना करते। आप समझाइए इनको, आपकी मानेंगे ये? अब जब इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक दाखिल नहीं कर पाए, लोअर कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए, अब इनको लगता है कि हम हारेंगे, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सबको एक दूसरे के सहयोग और आपसी बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं खुद ही इसके समर्थक हूँ। काशी मथुरा के संदर्भ में जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब उनको लगने लगा कि तथ्य और सत्य जो है वो हिंदू समाज के साथ हैं,
भगवान कृष्ण और भोले शंकर के साथ हैं, तब लोग कुछ बातचीत की बात कर रहे हैं। Okay, let's go across to our guest joining us, Syed Nasiruddin Chishti. You heard from him there. Chairman of the AISSC is also joining us. Maulana Sajid Rashidi, Chairman, All India Imam Association. He's of course vehemently objected to this. Charu Pragya, BJP spokesperson. Ashwini Dubey, Advocate Supreme Court, all with us. I want to go across to Syed Nasiruddin Chishti. आपने देखा होगा कि जब से ये सजेशन आया है अजमेर शरीफ की तरफ से बहुत ऑपोजिशन हो रहा है और इमाम एसोसिएशन के लोग उनसे जुड़े हुए लोग उन्होंने अपोज किया है, साजिद रशीदी ने अपोज किया है। तो ये जो निंदा हो रही है इस कमेंट की या इस सजेशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो हमेशा अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ लोगों के सामने रखते हैं। तो कल भी उन्होंने जो हमारा ऑल इंडिया सूफी सजेशन काउंसिल की मीटिंग थी उसमें रखी। उनका सजेशन ये था कोई भी विवाद हो उसका हल अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। और अगर कोई सुलह की पहल के भी अपोज करता है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर लोग इसका भी अपोज कर रहे हैं कि दीवान साहब ने अपने सामने एक प्रपोजल रखा और तमाम मकतब फिक्र, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उनसे अपील करी कि ऐसा माहौल बनाए कि एक सम्मानजनक हल निकल सके जी और समझौता हो सके। और अगर समझौते की पहल को भी अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो बड़ी दुख की बात नहीं। लेकिन हमने देखा है सर कि राम जन्मभूमि के मामले में भी बहुत पहल हुई थी, बहुत सारे समझौते की कोशिश की गई थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो आपको क्यों लगता है कि अब की बार हो जाएगा? देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा लोगों का, मेरा मानना है, मेरा भी रहा, तो हम एक कोशिश करें। अगर हम पहले से हार मान के बैठ जाएंगे तो मसाइल के हल नहीं होने। एक कह सकते हैं कि हम जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर आज शांति का प्रतीक बना हुआ है, आज बड़े बड़े जो दुनिया के विवाद हैं उसमें हिंदुस्तान पहल करके, इंटरव्यूइंग करके सुलह की पहल करवा रहा है। तो क्या हम अपने देश के, जो इस देश के नागरिक हैं, जो वासुदेव कुटुंबकम के एक सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं, कि हम आपस में बैठ के कोई मसाइल का हल नहीं निकाल सकते? हमें सिर्फ एक पहल की जरूरत है। तो हमने ये पहल करी है और इस पहल को कहाँ तक कामयाब होते हैं तो अल्लाह उसकी जात जानता है कि अल्लाह कहाँ तक हमें कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन हमारी नीयत बहुत साफ है। हम चाहते हैं एक सम्मान पूर्वक हल निकले, आने वाली पीढ़ी को हम एक साफ सुथरा वातावरण दें और आपस में मोहब्बत रहे और इस मुल्क को मजबूत करें कि ये मुल्क तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है इस मुल्क का हर नागरिक तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, जो समझौता होगा वो तो यही समझौता हो सकता है ना कि वहाँ हिंदू मानते हैं वो जन्म स्थान है वो खाली हो जाए, वहाँ मंदिर बन जाए और बढ़ जाए और मस्जिद के लिए कोई और जमीन दी जाए। यही अयोध्या में हुआ था। तो क्या मुस्लिम समाज इसको मानेगा? क्या ये समझौता हो सकता है? देखिए, ये तो हम जब टेबल पे बैठेंगे ना, जब क्या प्रपोजल उस तरफ से आते हैं और क्या प्रपोजल इस तरफ से आते हैं, तो वहां बैठ के फाइनल डिसीजन होगा। ये तो बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज है अगर मैं कुछ बोलूं। और जब मैटर सबजुडी से तो मेरा बोलना इसमें मुमकिन भी नहीं है। हम चाहते बंद कमरे में मुलाकातें हों, कुछ सहमति बने, किन मामला से बन सकती है, इसमें हमारे जो उलमाए कराम, हमारे मुफ्तियाए कराम है, उनसे भी राय ली जाएगी और किस हद तक बात हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश है और हमें तो आपका भी सपोर्ट चाहिए, मीडिया का भी। इसमें देश से नकारात्मक सोच को खत्म करना होगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें और सेल्फ इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे छोड़ें और मुल्क की फलाह बहबूदी की सोचें, मुल्क को मजबूत करने की सोचें और आने वाली जनरेशन के लिए सोचें। हमारे ये मकसद। जी जी, सैयद चिश्ती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वो उनको जाना था, वो निकल जाएंगे अब। लेकिन मौलाना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। वो निकल जाएंगे, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो अपोजिशन किया है, मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों अपोज करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इसलिए करना चाहते हैं अपोज की ट्रस्ट नहीं है दूसरी तरफ, या आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो ही नहीं सकता? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, सुबह से आप हिंदू पक्ष की बाइटें सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। एक भी आदमी ने इनके सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो फार्मूला दिया है, इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, उसका एक फार्मूला इनको देना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं बात होगी तभी तो आगे नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे दूसरा पक्ष कह रहा है कि फार्मूला ये है कि हमें मथुरा और काशी दे दो,
उनकी तरफ से फार्मूला ये है, इनको भी एक फार्मूला देना चाहिए था कि बात इस पर हो सकती है। इन्होंने तो कोई फार्मूला तो दिया नहीं। पूछा ना कि होगा क्या समाधान, जब तो कोई वो कह रहे हैं कि फार्मूला- जब टेबल पे बैठेंगे तभी कोई नहीं, नहीं, प्रपोजल टेबल आप पे- नेगोशिएट करेंगे। देखिए वही बात है, हम हिंदू पक्ष को सुन रहे हैं, उनका सीधा सा फार्मूला है कि हमें एक मथुरा काशी दे दो। इनको मैं फिर कहता हूं, इनको एक फार्मूला लेके आना चाहिए पर था आप प्रेस ओपन कॉन्फ्रेंस होंगे से अगर वो पहले। फॉर्मूला देते हैं तो? नहीं, फार्मूला आ ही नहीं सकता ना, हमें पता है, हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद केस में भी सेम यही बात थी। जब भी हिंदू पक्ष से बात की जाती थी, उनका एक ही सजेशन होता था, बाबरी मस्जिद हमें दे दो, बैठ लो, बाबरी मस्जिद हमें दे दो, बैठ लो। नहीं, तो एक्चुअली देखिए, एक दो केसेस प्रपोजल ऐसे भी आए थे कि उसी एकड़ जमीन पे जो डिस्प्यूटेड थी, वहीं पे मंदिर भी बन जाए और मस्जिद भी बन जाए, एक दीवार हो जाए बीच में, या थोड़ा सा 400 मीटर 500 मीटर की दूरी हो जाए, ये भी सोल्यूशन आए थे। ये भी ये फार्मूला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था कि जमीन आधी आधी हो जाए, लेकिन नहीं माना हिंदू पक्ष ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी नहीं माना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। बट मुस्लिम पक्ष में तो दूसरे नहीं, मुस्लिम पक्ष तो इस पर भी राजी था। मुस्लिम पक्ष इस पर राजी था कि जमीन आधी आधी हो जाए। नहीं, मुस्लिम पक्ष ने, कह रहे हैं। सुनिए, मुस्लिम पक्ष ने तो ये भी कहा था कोर्ट में कि अगर अंश मिल जाएंगे मंदिर के तो हम छोड़ देंगे जमीन, अंश मिलने के बाद भी नहीं वो उस वक्त कहा जब हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तब हमने बोला कि अगर अंश मिल जाएंगे हम जमीन भी छोड़ देंगे। तो नहीं छोड़ा ना उसके बाद, लेकिन नहीं मिले ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। मंदिर के तो अंश मिले हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य 4 बातें कही। सबसे पहले ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, सबसे पहला। उसके बाद में कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो चोरी से रखी गई, गलत तरीके से रखी गई। तीसरे उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। चौथी बात उन्होंने कही कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बातें कही। फिर कोर्ट ने कहा structure was found underneath the Babri masjid that was very well established by the ASI. There was only some dispute in some minds whether you could say beyond doubt it was a Hindu structure or not. But I think, the more we get into historical aspects, the more this debate will get stretched. Let's stay focused on whether a resolution is possible or not. Charu, can political parties come forward? They've tried it before. Prime ministers have tried it before. Will the current BJP dispensation be interested? Shivani, the Bharatiya Janata Party and the government led by Bharatiya Janata Party has been very clear on certain things. We don't want to do anything that is unconstitutional. We don't want to adopt any means which are unlawful. And we have stuck to that, and that is why it took so long to get Ram Lalla Virajman in his grand palace. It took so long only because we waited for a verdict from the Supreme Court. I believe that the first option for any kind of a dispute needs to be a mutual resolving of that dispute. If we can do that, I am certain there is nothing like it. But do you think, looking at how politically there are certain sections of our opposition who thrive on only polarizing sections of society, do you think they will allow it to happen? Because I'll tell you something, there are lakhs of mandirs across our nation. Lakhs of mandirs have also been destroyed in the past. But we have said that हमारी आस्था, जो हमारे मेन भगवान हैं, उनके जन्मस्थल से जुड़ी है, even that has been disrespected in the past. And when we say Kashi or Mathura or Ayodhya, that has been a space of great devotion for us, because these are not places, these are not Janmbhumis that we can just let pass by. So I think if we can come to a resolution without any conflict, I am very certain we would welcome it. We are not going to allow for anything unconstitutional to happen. Okay. But if we have to take the legal route and we have to fight it out in court, I think why not? Because these temples are not being made for you and me or just this generation. This temple is going to be here for generations. I get that. And actually people have questioned whether a settlement is going to be fruitful. Because Ashwini Dubey, there is a case of a quote-unquote settlement in the case of Mathura, for example. That very settlement is challenged in court today on the grounds that one of the parties had no business getting into the land dealing because they had no locus standi or authority. So, you could do these settlements, but they're going to be subject to litigation later. This is one aspect. And the second aspect, any party can challenge that, provided the party
was not aware about the settlement which has taken place. Here the case is altogether different. What the person was not authorized, Shivani, has executed an agreement. So even the owners or the trust which was actually legally capable of executing the document is not aware. So it will be challenged. This is one. Second aspect is right to judicial remedy, Shivani, is a fundamental right. The Constitution of India, which is the holy book, which is in existence and every party agree to it, that also said that nobody can take out your right to approach to the court of law for redressal of your grievances. Point number 3, Shivani, so far as the Places of Worship Act is concerned, we have already debated in earlier, that prohibits as of now only conversion, not ascertaining the character of the religious building. And the Supreme Court in Gyan Wapi's case have already said that the investigation is allowed, investigation can be done. Yes. And fourth and important point is Places of Worship Act's legality, whether the center by making the provisions in 1991 by creating arbitrary, irrational, retrospective cut-off date can ask any citizen of this country that look, आप अदालत नहीं जा सकते. Despite that one chapter of the Constitution itself that for redressal of any grievances, Right, right. the law. So there are these aspects, Shivani, where I think that the judicial remedy is one of the proper, appropriate, accurate and the better remedy which can be resorted by the court because both the sides, Masjid side also agree to it, and of course the worshippers of Prabhuji, they have approached to the court of law that look, हमें तो शांति से हमारी जगह चाहिए. So where is the question? Now my friend was saying about the Ayodhya. Shivani, very categorically with due respect to him, अयोध्या के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने 5 जजेस ने यूनानिमस डिसीजन ASI सर्वे रिपोर्ट और तमाम तथ्यों को देखते हुए लिया था. That was not the case of the agreement or disagreement. You know, but can I just say, I don't want to get into that because these are different cases. But रशीदी जी, मेरे पास 30 सेकंड है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. चलो, अयोध्या के केस में आपको लगता है तथ्य नहीं थे, बट काशी के केस में तो है. काशी में तो मंदिर दिखता ही है, मंदिर की दीवार दिखती है. लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे तथ्य मिले या ना मिले, मुस्लिम समाज ये अब मानेगा नहीं कि मंदिर तोड़ा गया था. देखिए, मानने न मानने की बात नहीं है. हिस्ट्री उसकी बिल्कुल सबूत है पूरा हिस्ट्री में. ये मस्जिद अकबर से भी पहले बनी हुई है. सर वो हिस्ट्री में नहीं है. औरंगजेब ने कहाँ इसको तोड़ा, कब बनाया, दूसरी बात. अभी देखिए, बीजेपी के 2 मत हैं. एक बीजेपी का मत ये है कि हम कानून से इसको लेंगे. एक मत ये है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ये कहा कि कौरव ने 5 गांव मांगे थे, फिर क्या हुआ, महाभारत हुई. उसके नतीजे में खुली धमकी कि अगर मुसलमान नहीं देंगे तो फिर महाभारत होगी. साफ तौर से कहा जा रहा है. कोर्ट में महाभारत चल रही है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं. नहीं, कोर्ट में महाभारत थोड़ी होती है. महाभारत नहीं हो रही, कोर्ट से महाभारत का कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट अलग चीज है, महाभारत अलग चीज है. जी, कोर्ट का मतलब लड़ाई नहीं. मानना है कि ये कोर्ट से ही होगा, तो कोर्ट में तो प्रक्रिया चलेगी. चारू, आई हैव 10 सेकंड्स ओनली, 10 सेकंड्स. यस, आई विल बी वेरी क्विक. देखिए सर, आप ना इसको ट्रांसलेट आप गलत तरीके से कर रहे हैं. एक चीज आप समझ के रखिए, महाभारत भी सही और गलत के बीच में लड़ाई थी, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई थी. लेकिन लड़ाई तो अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं, आपको तो खुद ही बोल देना चाहिए. नहीं, वो लड़ाई थी. आज के जमाने में अगर 550 साल की लड़ाई हमने रामलला की लड़ी और कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद ही, नहीं मेरे बीच में मत बोलिए, अभी भी हमने रामलला के लिए 550 साल इंतजार किया, एंड दिस वाज क्विकली डन इन कोर्ट ओनली. सो इफ यू वांट टू एक्चुअली लुक एट इट इन अ राइट एंड अ रॉन्ग वे, नहीं कि आपने 92 में तोड़ दिया मस्जिद को. आपने इंतजार कहां किया? 92 में तोड़ दिया उसको. आपने पूजा बंद करवाई थी. यू आर द वन हु कंटिन्यू चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ ऑल द इंतजार जब होता, जब बाबरी मस्जिद टूटी तो खड़ी हुई होती. This is exactly the kind of debate we don't want to get in really, because we've seen this play out as far as Ayodhya is concerned. We'll leave it to your judgment whether an out-of-court settlement is possible or not. We slip into a very short break.